السلام علیکم. بیان بھی سنیں مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے. جزاک اللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك فاعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قدر الله لك وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضرك بشيء لم يضرك بشيء إلا ما قدر الله لك رفعت الأقلام وجفت الصحف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والقرآن حجة لك وعليك كل الناس يغدو فبائع النفس إما موبقها أو معتقها. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، اس وقت میں نے قرآن مقدس کی ایک عظیم القدر 4 آیتوں پر مشتمل قرآن کریم میں ایک مضمون توحید کا زبردست خلاصہ جس سورہ شریفہ میں بیان کیا گیا ہے پڑھ کر کے سنایا ہے اور 2 روایتیں پڑھی ہیں. اس سورہ شریفہ میں توحید کا عظیم ترین مضمون بیان کیا گیا ہے. قرآن کریم میں یہ سورہ شریفہ 112ویں نمبر پر واقع ہے. کل 114 سورتیں ہیں جن میں سے 112ویں نمبر پر واقع یہ سورہ اخلاص ہے. اس سورت کا نام سورۃ الاخلاص ہے. عام طور پر قرآن کریم کی سورتوں کے نام سورتوں میں وہ لفظ آنے کی وجہ سے لکھا گیا ہے. جیسے بقرہ 2.5 پارے کی ہے تو اس میں لفظ بقرہ پایا جاتا ہے. لإلاف قریش اس میں قریش کا لفظ پایا گیا ہے. اس وجہ سے پوری سورت کا نام سورہ قریش ہے. تبت یدا ابی لہب اس کے اندر ابو لہب کا لفظ آیا ہے تو پوری سورت کا نام سورہ ابو لہب ہے. قل اعوذ برب الفلق اس میں فلق کا لفظ آیا ہے، اس کا نام سورہ فلق ہے. لیکن الحمدللہ رب العالمین پوری سورت میں کہیں فاتحہ کا لفظ نہیں آیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। फातिहा का लफ्ज नहीं आया, लेकिन सूरत का नाम फातिहा है। इस तरह यह लफ्ज इखलास आया नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद एक आयत, अल्लाहु समद दो आयत, लम यलिद वलम यूलद तीन आयत, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद चार आयत। इखलास का लफ्ज नहीं आया, लेकिन नाम हेडिंग सूरह इखलास है। ऐसा क्यों? कुरान करीम की 114 सूरतों में से अक्सर सूरतें ऐसी हैं कि जुज़वी सूरत में कहीं वो लफ्ज आता है तो कुल सूरत का नाम रख दिया जाता है। ये कायदा कुल्लिया नहीं है। अक्सर सूरतों में लफ्ज आया तो नाम रखा गया, लेकिन कुछ सूरतें ऐसी है जहां वो लफ्ज आया नहीं, लेकिन उस सूरत का नाम रखा गया, जैसे फातिहा, जैसे सूरह इखलास। तो इसका नाम हो गया सूरह इखलास। पहले ही सूरह शरीफा के फजाइल सुने। बहुत बड़ी सूरत है। 3 रिवायतें इसकी फजीलत में जिक्र करते हैं। एक शख्स अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सूरह इखलास से मोहब्बत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी मोहब्बत ने तुझे जन्नत में दाखिल कर दिया। ये रिवायत हो गई, तिरमिज़ी शरीफ में है। आने वाला शख्स क्या कह रहा है? 4 आयतें हैं, जबकि कुरान करीम में 6666 आयतें हैं। 6666 आयतें। आने वाला आदमी कह रहा है, इन 4 आयतों से, पूरी सूरत से मुझे बड़ी मोहब्बत है। आका ने फरमाया, इसकी मोहब्बत ने तुझे जन्नत में दाखिल कर दिया। अब पूरे कुरान की तमाम आयतों से जो आदमी मोहब्बत करे, या हामिल कुरान से जो मोहब्बत करे, उसकी जन्नत का हाल क्या होगा? खाली 4 आयतों पर यह बशारत मुस्लिम शरीफ में है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अबू हुरैरा रावी है, रावी भी बड़ा जबरदस्त, 5674 रिवायतें इनसे उम्मत में आई है। तब हुरैरा रावी ये हदीस है, मुस्लिम शरीफ में रिवायत है। आका ने फरमाया एक दिन, अबू हुरैरा, लोगों को जमा करो, मैं 1/3 कुरान सुनाना चाहता हूं। 1/3, 1/3 कुरान सुनाना चाहता हूं। 10 सिपारे, 1/3 कुरान 10 पारे हुए, 30 पारे हैं। 30 का 1/3 10 हुआ। मुस्लिम शरीफ में रिवायत है, आका ने फरमाया, अबू हुरैरा ऐलान करो, 1/3 कुरान सुनाना चाहता हूं। जितने आ सकते थे मजमे के लोग आ गए। आका ने ताऊद तस्मिया के बाद फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। फरमाया, जाओ, हो गया। ये सूरत 1 मर्तबा 10 सिपारे के बराबर है। ये मुस्लिम शरीफ में रिवायत है। आका ने फिर सहाबा को रुखसत कर दिया, तुम जाओ। जो आदमी इखलास और लिल्लाहियत के साथ 1 मर्तबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े, वो 10 पारों के बराबर हो गए। एक और रिवायत में है, मुस्तदरक के हाकिम में बयान किया है, और सिहा की बहुत सारी किताबों में, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसई, इब्न माजा में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तौरात में, ज़बूर में और इंजील में और कुरान में 3 सूरतें बराबर उतरी है। एक सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। तौरात में भी है, इंजील में भी है और कुरान करीम में भी। तीनों किताबों के अंदर इसको बयान किया गया है। एक रिवायत में अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी दिन में
या रात में सोने से पहले और दिन में फजर की नमाज के बाद एक एक मर्तबा कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ ले। हर आफत, हर बला और हर मुसीबत से ये 3 सूरतें उसके लिए काफी हो जाएगी। दुनिया की कोई भी आफत, बला, मुसीबत चाहे इंसानों की तरफ से हो या जानवरों की तरफ से हो या जिन्नातों की तरफ से हो, हर दुनियावी शरारत, आफत, बला से हिफाजत के लिए कफताहु, ये सूरतें उसके लिए काफी हो जाएगी। दिन में 1 मरतबा, रात में 1 मरतबा कोई आदमी इन 3 सूरतों को पढ़ ले, ये सूरतें उसके लिए काफी हो जाएगी। एक रिवायत में है, एक सहाबी मोहल्ले की मस्जिद में इमाम थे। रोजाना फजर की नमाज में दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत पढ़ते रहे। अब मोहल्ले के नमाजियों ने कहा कि इमाम साहब की पेटन दूसरी रकात में फजर में कुल हुवल्लाहु अहद, कुरान तो बहुत बड़ी किताब है, तो नई नई किताबें, नई नई सूरतें पढ़नी चाहिए। रोजाना कुल हुवल्लाहु अहद खास कर ली। जैसे आमतौर पर इमामों की शिकायतें होती हैं, तो उस मोहल्ले के लोगों को एक दिन रिसालत में इमाम से फरियाद हो गई। ये फरियाद दरबार नबूवत पे पहुंची और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि हमारे इमाम साहब हैं, फजर की नमाज में पेटन दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हैं। आका ने इमाम साहब को बुलाया और इमाम साहब से पूछा, आपके मोहल्ले के मुक्तदी ऐसी बात करते हैं तो आप तस्बीह फरमाएं, क्यों ऐसा करते हैं? इमाम साहब ने कहा, बात सच्ची है, फजर की नमाज की दूसरी रकात में मैं कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ता हूं। आका ने फरमाया, क्यों? तो कहा, इस सूरत से मुझे बड़ी मोहब्बत है। आका ने फरमाया, इसकी मोहब्बत ने तेरे लिए जन्नत को वाजिब कर दिया। और मुक्तदियों से कहा, आपको इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़नी हो तो पढ़ो, वरना तुम्हारे इमाम को उनकी हालत पर रहने दो। जिस सूरत की मोहब्बत उसको जन्नत वाजिब करा देती है, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कौन हो सकता हूं कि उसको जन्नत से दूर करूं। तुमको नमाज पढ़नी हो तो इमाम साहब के पीछे पढ़ो, वरना दूसरी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ लो, वरना इसकी इल्लत माकूल है, इसका कारण योग्य है और योग्य कारण के तहत वो पढ़ाते हैं, लिहाजा तुमको मुनासिब हो तो उनके पीछे रोजाना पढ़ते रहो। जिसके लिए पैगंबर जन्नत की बशारत दे, तो कौन हो सकता है कि उस इमाम का साथ छोड़े? ये तो इस सूरत की फजीलत में 5 बातें हो गई। इस सूरत की हकीकत, कुरान करीम 6666 आयतों पर मुश्तमिल है। पूरी कुरान में 3 मजमून है, जिसको टॉपिक कहते हैं, जिसको उन्वान कहते हैं। एक उन्वान तौहीद, एक उन्वान रिसालत, एक उन्वान आखिरत। कुरान की 30 सिपारे 3 बातों पर मुश्तमिल है। एक को तौहीद, एक को रिसालत और एक को आखिरत कहते हैं। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी, बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि पूरा कुरान 3 मज़ामीन पर मुश्तमिल है, तौहीद, रिसालत, आखिरत। और पूरे कुरान की तौहीद जो 1/3 कुरान है, वो पूरा का पूरा अल्लाह ने सूरह इखलास में भर दिया, यानी कुल हुवल्लाहु अहद। पूरी कुरान की बयान करदा तौहीद एक कुल हुवल्लाहु अहद में अल्लाह ने जमा कर दी। अगरचे अल्लाह की तौहीद को बयान करने वाली कुरान में और 1000 आयतें हैं, लेकिन इन 1000 आयत में जो कुछ है वो कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत में। ये वो 10 सूरतें वो है इब्तिदाई, जो हर बच्चे को याद होती है। अलम तरा से लेकर मन्नास तक 10 सूरतें हर बच्चे को याद होती है और ये हिफ्ज करवाई जाती है मकातिब में, उसके ये फायदे हैं। ये तो सूरत की हकीकत। इस सूरत का शान नुज़ूल क्या है? क्या मतलब?
आका की उम्र शरीफ के 40 साल 6 महीने के बाद गारे हीरा की खलवतों में तखलियां पूरा करने के बाद आप पर जो कुरान उतरना शुरू हुआ तो 13 साल मक्के में आया, 10 साल मदीने में आया, कुल 23 साल में कुरान पूरा हुआ। आसमान से जमीन पर आका के कल्बे अतहर पर जिब्रील अमीन की वसातत से जब कुरान करीम इस तौर पर नुज़ुल हुआ तो आका पर दुनिया में कोई वाकया पैदा करवाया जाता और वाकया पैदा करवा करके फिर अल्लाह हुक्म उतारता। जैसे किसी से चोरी हुई, अब हुक्म आया अस्सारिको वस्सारिकतु फक्तहु अयदीहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालुम मिनल्लाह। जब तक चोरी सादिर नहीं हुई, चोर के कतईयत का हुक्म नहीं आया, तो कोई सबब अल्लाह की तरफ से बनाया गया। मुसब्बिबुल अस्बाब अल्लाह है, अल्लाह सबब बनाता है, फिर उस सबब पर हुक्म उतारता है, एक वाक़िया जुज़इया पैदा किया जाता है। लेकिन अल्लाह किसी वाक़िया जुज़इया का मोहताज नहीं, कभी किसी सबब के बगैर भी अल्लाह अपना हुक्म उतारता है। तो रूए जमीन में कोई वाक़िया रूनुमा करवा करके फिर अल्लाह हुक्म उतारे, इसको शान नुज़ूल कहते हैं। और रूए जमीन पर कोई वाक़िया हादसा रूनुमा किए बगैर अल्लाह अपनी तरफ से हुक्म भेज दे तो इसको अल्लाह की तरफ से यह आयत का पसे मंजर होता है। सूरह इखलास कब उतरी? सूरह इखलास उतरी कब? तरतीब में 112वें नंबर पर है, लेकिन मक्का के इब्तिदाई दौर में उतरी थी। अच्छा, यह सूरत मक्की है। मक्की होने का मतलब क्या है कि आका के ऐलान नबूवत के बाद से लेकर मदीना की तरफ हिजरत फरमा जाने तक 13 साल मक्कतुल मुकर्रमा और अतराफ और जवारे में आपका कयाम रहा। इन 13 साल के जमाने में जो कुरान उतरा है वो मक्की है और वो 87 सूरतें हैं। फिर आका के अल्लाह के हुक्म को पाकर के मक्का छोड़कर मदीना के ऐलान के बाद कभी बदर में, कभी उहुद में, कभी बनो कुरैज़ा में, कभी बनो मुस्तलिक में, कभी खैबर में, कभी ताइफ में, कभी यमन में, खाली मदीने में नहीं। 10 साल के जमाने में जो कुरान उतरा वो मदनी है, वो 27 सूरतों में आ गया। ऐलान नबूवत से पहले का जमाना 13, ऐलान नबूवत के बाद से मक्का का कयाम 13 साल और ऐलान नबूवत के बाद मक्का के 13 साल पूरे करके हिजरत के बाद के मदीना और अतराफ के 10 साल। ये सूरत एक कौल के मुताबिक मक्की है, इब्तिदाई दौरे नबूवत में उतर चुकी, और दूसरे शान नुज़ुल के मुताबिक यहूदियों की शरारत थी और मक्का के मुशरिकों ने सवाल किया था, इस वजह से यह सूरत मदनी है। लेकिन राजी यह है कि यह सूरत मक्की है, मदनी नहीं। शान नुज़ुल क्या था? आपने जब मक्का में ऐलान नबूवत किया उस वक्त मक्कतुल मुकर्रमा में शिर्क बहुत तेजी के साथ था। हजारों लाखों देवी देवताओं की परस्तिश होती थी। शिर्क के अक़साम हैं, एक शिर्क फी तौहीद है, एक शिर्क फी ज़ात, शिर्क फी सफ़ात, शिर्क फी इबादत। शिर्क के प्रकार अलग अलग है। हजरत मुफ्ती इब्राहिम साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू ने एक किताब मांगरोल में लिखी थी जो बाद में शाये हो चुकी और 2 जुबानों में आज बाजार में है। असल हजरत मुफ्ती साहब ने नवाब के दौर में उर्दू में लिखी थी और अभी उसका गुजराती तर्जमा हो गया। गुजराती में नाम इसका शिर्क करना विविध प्रकार और उर्दू में उसका नाम अनवा उस शिर्क की वत्तोगयान। तो असल किताब जो ओरिजिनल है अनवा उस शिर्क की वत्तोगयान, शिर्क और सरकशी के प्रकार कितने हैं, किसमें कितनी। हजरत मुफ्ती साहब की तकरीबन 11 किताबें छप चुकी हैं। उनके जमाने में भी तकरीबन 7 किताबें थी।
एक हकीकत तसव्वुफ, एक अनवाउ शिर्क की वक्त ज्ञान, एक उम्मीद नजात, एक राह अमल वगैरह वगैरह कुछ किताबें उनकी जिंदगी में शाये हो चुकी थी, जो बहुत कदीम और पुरानी हो चुकी। अब इसमें से उलमा छानावट कर करके ओरिजिनल नुस्खा बाकी रखकर बेआईनी ही किताब भी शाये कर रहे हैं। शिर्क के मुख्तलिफ प्रकार हैं। तो मक्का का दौर था, मक्का के मुशरिक आका की बढ़ती हुई मकबूलियत और मक्का मुकर्रमा में खानाए काबा में 365 माबूद जो रखे हुए हैं, इनसे भी मक्का वालों का काम पूरा नहीं उतरता है। और एक अल्लाह की तौहीद का डंका एक नबी उम्मी खानदान कुरैश में से पैदा होकर बनु हाशिम में से एक अल्लाह की तौहीद का डंका बजा रहा है, तो उनकी अक्लों ने इसको कबूल नहीं किया कि 365 से काम नहीं बनता है और एक से कैसे काम बढ़ जाएगा। अजा अलल आलिहत इलाहा वाहिदा इन्न हादा लशैउन अजाब। इन सारे माबूदों को छोड़कर एक अल्लाह की तौहीद के हम कायल हो जाए, ये तो बहुत ताज्जुब की बात है। ये मक्का के मुशरिकों का जवाब था। बहुत चैलेंज थे आका को, मक्के में चैलेंजेस बहुत थे। अबू लहब, अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद इब्न मुगीरा, आस इब्न वाइल जमाने के इंतहाई खतरनाक कातिल ज़हनीयत के इंसान थे। अपनी चौधराहट और अपनी सरदारी और अपनी एक अजीब किस्म की सरकशी का माहौल मक्के में उनका कायम किया हुआ, तो उन्होंने आका को सताना शुरू किया। अब इन्होंने आका से एक सवाल किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस अल्लाह के रब होने का तू दावा दायर करता है, उस अल्लाह का बाप कौन और उस अल्लाह के औलाद कौन? सवाल समझ में आया? इन्होंने यूं कहा, या मोहम्मद अनसिब लना रब्बक, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे रब की वंशावली बयान कर। इसके बाप बाप कौन है, इसकी औलाद कौन? क्यों? वंशावली से आदमी पहचाना जाता है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। कुरान ने दूसरी जगह फरमाया, ऐ लोगों, हमने तुमको एक मर्द और औरत से पैदा किया। वह मर्द आदम था, वह औरत हव्वा थी। एक जोड़े से तुमको पैदा किया। वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल, तुमको अलग अलग खानदानों में, अलग अलग कबीलों में, अलग अलग बिरादरियों में तकसीम कर दिए। अलग अलग बिरादरियों। क्यों? लितारुफू, ताकि पहचान हो जावे तुम्हारी, और पहचान हो तारुफ हो। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, सैयद होना कोई करामत की चीज नहीं और झांची होना कोई रसालत की चीज नहीं। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अगर झांची मुत्तकी है, अल्लाह के यहां मुकर्रम है, और खुदा न खास्ता अहले बैत से निस्बत रखने वाला अगर मुत्तबे सुन्नत नहीं है, तो वह अल्लाह के यहां उसकी कोई कदर नहीं। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, जितना खुदा का खौफ दिल में होगा इतनी करामत उतरेगी। तो मक्का वालों ने पूछा, एक शान नुज़ूल लिए, एक वाकया ये पैदा हुआ, जिस अल्लाह के रब होने का दावा तुम दायर करते हो, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी वंशावली बयान करो। दूसरा, जिस अल्लाह के रब होने का तुम दावा दायर करते हो, हमारे 365 माबूद खानाए काबा में कोई पत्थर के बने हुए हैं मूर्ति, कोई चांदी की बनी हुई है, कोई सोने की बनी हुई है, कोई और धातु की बनी हुई है। आमतौर पर पत्थर तराश करके साथ में रखने का रिवाज मक्के में था, कोई लकड़े की बनी हुई है। तो दूसरा सवाल यह था कि जिस अल्लाह के रब होने का तू दावा दायर करता है, वंशावली के साथ ये बयान कर कि वो किस धातु का बना हुआ है। यह उनकी मानसिकता थी, क्योंकि वो लोग अपने हाथ के बनाए हुए माबूद पूजते थे, जैसे दुनिया के तमाम सनातनी
हजारों लाखों करोड़ों देवताओं को पूजते हैं। इनके यहां पूजने वालों की तादाद कम है और जो माबूद पूजे जाते हैं उनकी तादाद વધારે है। ये दुनिया में देखा जा रहा है। इन्होंने सवाल कर लिए। अब अल्लाह ने अपने पैगंबर पर सवाल के दो मुद्दे समझ में आए, दो उन्वान। एक उन्वान वो अल्लाह की वंशावली या वो अल्लाह की जात से बना हुआ है जिसकी इबादत और जिसकी तौहीद की दावत आप दे रहे हैं और जिसका डंका बजा रहे हैं, जरा बयान करो। कुरान का अंदाज बयान वाकईतन बड़ा अजीब। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। इस सवाल से मक्का के मुशरिकों ने अपने दिल का जहर उगाला था, हम आपको नबी नहीं मानते हैं। आका की नबूवत का वो इनकार करते थे और यूं कहते थे, कभी कोई यतीम, कभी कोई बेआसरा, कभी मक्के में जिसको कोई पूछने वाला नहीं, क्या वो इतने बड़े दावा और मनसब पर फाइल हो जावे और हम बड़े बड़े फजल कमाल के मालिक और हमको ये मनसब न मिले? तो हसद था। अल्लाह के पैगंबर की मुखालफत में उतर चुके थे। कुरान जैसा बलीग कलाम कोई नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने एक हुक्म उतारा और इस हुक्म में जवाब का पसे मंजर देखो। कुल हुवल्लाहु अहद। अरे अल्लाह के पैगंबर, इनके सवाल का जवाब अपनी जगह पर मिलेगा, लेकिन सवाल के जवाब से पहले इनकी हम बिगड़ी हुई ज़हनियत का जवाब दे रहे हैं। वह हमको अल्लाह का नबी नहीं मानते, लस्त मुरसला, वो साफ साफ कहते हैं आप अल्लाह के रसूल नहीं। इनका पहले हम जवाब देते हैं। ऐसा ही वाक़या कुरान में सूरह कौसर में है। इन्ना आतैना कल कौसर। मक्का के मुशरिकों ने ताना दिया था पैगंबर को कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-अयाज़ु बिल्लाह अबतर है, वांझिया है। जवाब कुरान ने अजीब दिया, इन्ना आतैना कल कौसर। अरे भाई, उनका जवाब दो सवाल का, वो नहीं दिया। फसल्ले लिरब्बिका वन्हर हुक्म दिया, इन्न सानिया का हुवल अबतर और जनरल नियम बयान कर दिया। हमने आपको कौसर दी, बहुत बड़ी नेमत है। इधर उधर के ख्यालात में मत पड़ो, नेमत का शुक्राना अदा करो, इबादतें बदनिया करके, इबादतें मालिया करके। और देखो ताने फकरे, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। जो आपका दुश्मन है वो मिटेगा, आपकी जात मिटेगी नहीं। आखिर में गाली का जवाब दिया पैगंबर को, लेकिन बड़े प्यारे अंदाज में। यहां अल्लाह ताला अपने पैगंबर से कुल के जरिए से खिताब करके फरमाते हैं, नबी जी जरा इनको ये बात समझा दो, मैं अल्लाह की तरफ से रसूल बरहक हूं, मैं अल्लाह का नबी हूं। इसलिए कि जिस मालिक की तरफ से हुक्म हो रहा है वो मालिक अपना हुक्म नाफिज करने के लिए मुझे यूं कह रहा है, कुल। इनके सवाल का जवाब नबी दे दो। कुल में दलाइले नबूवत में की जबरदस्त दलील अल्लाह ने उतार दी। सारी कायनात आपकी नबूवत की मुनकिर हो, लेकिन अल्लाह आपकी नबूवत की सदाकत कर रहा है और आपसे ऐलान करवा रहा है, नबूवत की बुनियाद पर आप नियाबतन इनको कह दो अल्लाह एक है। कुल हुवल्लाहु अहद। इससे दावाए नबूवत और रिसालत साबित हो गया और ये बात साबित हो गई कि आप अल्लाह के रसूल हैं। रसूली ही पर वही उतरती है, गैर नबी रसूल पर वही नहीं उतरा करती। आप जवाब दो, हुवल्लाहु अहद। अल्लाह एक है। अल्लाह किसे कहते हैं? उस वाजिबुल वजूद हस्ती को कहते हैं जो हमेशा से है, जो हमेशा रहेगी। वाजिबुल वजूद हस्ती है जिसका वजूद अपना असली है और जो हमेशा हमेशा रहने वाली है, वाजिबुल वजूद है। अल्लाहु आलमुन लिजातिहिल वाजिबुल वजूद, जो तमाम तर सिफात कमालात की मालिक जात है। अल मुस्तजमिअ लिजमीइ सिफातिल कमाल, जो तमाम तर अयूब और नकाइस से पाक है। वल मुनज़्ज़हु अन कुल्लि ऐबिन व नुक्सानिन। अल्लाह का तर्जमा इतना लंबा होता है। कोई हमसे यूं पूछे कि जिस अल्लाह की तुम इबादत करते हो
उसके बावजूद होने के तुम कायल हो, तो अल्लाह किसको कहते हैं? तो कोई कहता है कि भगवान को, ये गलत है। भगवान तो एक इंसान है। अलबत्ता ईश्वर, अल्लाह के तर्जमे में ईश्वर आता है। राम भी एक इंसान है, भगवान भी एक इंसान है। तो अल्लाह किसे कहते हैं? तो कोई मुसलमान ये न कहे कि हमारे भगवान का नाम है अलायाजुबिल्लाह। अल्लाह किसे कहते हैं? अलमुन लिज़ातिहिल वाजिबुल मौजूद अल मुस्तजमिया लिजमीइ सिफातिल कमाल वल मुनज़्ज़ह अन कुल्लि ऐबिन व नुक़सान। इस पर दुनिया के तमाम तर पूजे जाने वाले और तमाम मज़ाहिब का इनकार, यहूदी बातिल, ईसाई बातिल, मुशरिकीन मक्का बातिल, जो लोग सनातनी है वो भी बातिल। यहूदी 2 अल्लाह मानते थे, ईसाई 3 अल्लाह मानते थे। अजीब, जब बात निकल ही गई तो जिक्र कर दूं। यहूदियों के यहां 2 खुदा थे, एक यज़दान, एक हरमन। एक खैर का अल्लाह, एक शर का अल्लाह। नफा चाहिए तो इसकी पूजा करो, नुकसान से बचना है तो इसके पास जाओ। ईसाई 3 अल्लाह मानते थे, अल्लाह, मसीह और रूहुल कुद्स, यानी हजरत ईसा, जिब्रील और अल्लाह। एक ईसाइयों का तबका तस्लीस का कायल, हजरत ईसा, इनकी मां और जिब्रील, 3 अल्लाह। ईसाई लोग हजरत ईसा की उलूहियत के कायल थे, अल्लाह ने, और यहूदी उज़ैर की इब्नियत के कायल थे, उज़ैर अल्लाह का बेटा। ईसाई कहते हैं मसीह इब्न मरियम अल्लाह का बेटा, अल्लाह। यहूदियों की नफी हो गई। उस वक्त अरब के मुकाबले में 3 मजहब थे, यहूद, ईसाई और इस तरह के दूसरे मदाहिब। तीनों को जवाब दे दिया। अल्लाह अहद, अल्लाह कहते हैं उस वाजिबुल मौजूद जात को जो तमाम तर सिफात कमालात की मालिक है। वाजिबुल वजूद किसे कहते हैं? जिसका वजूद ओरिजिनल हो, किसी के वजूद के ताबे न हो। मेरा वजूद मेरे माँ बाप के वजूद के ताबे है, मेरे माँ बाप का वजूद मेरे दादा के वजूद के ताबे है। अगर मेरे माँ बाप से मैं साबित, मेरा बाप मेरे दादा से साबित, वो उनके बाप दादों से साबित, इसी को कुरान ने वंशावली बयान की। और जिसका नसब साबित न हो, गैर साबितुन नसब, इस्लाम में उसकी इमामत भी जायज नहीं। जिसका नसब साबित न हो उसकी इमामत भी जायज नहीं होती। उस पर एक दाग है, बदनुमा दाग, ये एक अलग उन्वान है। बड़ा प्यारा जवाब। खुद आपकी नबूवत की सदाकत खुदा बयान कर रहा है और अल्लाह की तरफ से नया वतन पैगंबर ऐलान दे दो। अल्लाहु अहद, अल्लाह का तर्जुमा हो गया। वो वाजिबुल वजूद, जिसका वजूद अपना असली वजूद है, किसी के वजूद के ताबे नहीं है, जो हमेशा से है, जो हमेशा रहेगा, उस पर फना कभी तारी नहीं होता है। ये वाजिबुल वजूद का तर्जुमा। एक तर्जुमा ये हुआ, तमाम तर सिफात कमालात उस अल्लाह ही में है और तमाम तरह से वो अल्लाह ही की जात पाक। उज़ैर में ऐब है, मां का मोहताज है। ईसा बगैर बाप के मां का मोहताज है। ये माबूद नहीं हो सकता। पहले अल्लाह ने दुनिया के तमाम बातिल मज़ाहिब और दुनिया की तमाम बातिल धर्म और उसकी पूजा की नफी कर दी। आखिर में जवाब आएगा, कुल हुवल्लाहु अहद। अहद का एक तर्जमा, अहद और वाहिद अरबी में कहते हैं एक को, लेकिन तर्जमे से दोनों का तर्जमा अल्लाहु अहदुन, तो अल्लाहु वाहिदुन कहना चाहिए। लेकिन अहद क्यों कहा? मक्का के मुशरिकों का साथ में यह भी सवाल था, माँ बाप कौन, औलाद कौन, वंशावली के साथ यह भी बयान करो कि किस धातु का बना हुआ है। तो वाहिद तरकीब से अल्लाह की जात पाक है, तरकीब से अल्लाह की जात तअद्दुद से पाक है। अजीब बातें इल्म निकात बयान किए, पूरे मानी के समंदर। अल्लाह अहद यूं फरमाया, उस जैसा कोई जात में भी नहीं,
और उस जैसा उसकी सिफात में भी कोई नहीं। अल्लाह की जात जैसी जात किसी की नहीं, और अल्लाह के सिफात जैसे सिफात किसी के भी नहीं। कुल हो अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, न उसको बेटे की जरूरत, न उसको माँ बाप की जरूरत, बेनियाज है। वह नफे नुकसान का खालिक और मालिक, किसी नफे नुकसान का अंदेशा उसको नहीं, इसलिए कि नफा नुकसान भी उसके पास है, किसी का वो मोहताज नहीं। कायनात की सारी मखलूक मोहताज, आसमान अपने वजूद में अल्लाह के अमर कुन का मोहताज, आसमान अपने फना में अल्लाह के अमर कुन का मोहताज, जमीन अपने वजूद में अल्लाह की मोहताज थी नहीं, अल्लाह के पैदा करने से हुई। 7 जमीनें, सूरज अपने वजूद में, अपने बका में, अपनी रोशनी देने में, अपने नफा नुकसान की तासीर में अल्लाह के हुक्म का मोहताज। कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह के अमर का मोहताज। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, बेनियाज है, उसको किसी की परवाह नहीं। आखिर में लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह की औलाद नहीं, अल्लाह के माँ बाप नहीं। उर्दू में तर्जमा करते हैं उसने जना नहीं, और जन्ना माँ बाप की तरफ से विलादत होती है, उसने जना नहीं यानी वो किसी का बाप नहीं। वलम यूलद, और उसकी कोई औलाद नहीं। आखिर में फरमाया वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, और अल्लाह जैसा कोई है ही नहीं। अब इस तारीफ में यहूदी भी अलग हो गए, ईसाई भी अलग हो गए, इस तरह आर्य समाज भी अलग हो गया, सनातनी भी अलग हो गए। सनातनी ईश्वर में मानते हैं, आर्य समाज किसी दर्जे में तौहीद का कायल है। अब शिर्क के अक़साम, तौहीद अल्लाह के लिए खास है, अल्लाह की जात में कोई शरीक नहीं, कोई भी नहीं, उसका कोई पार्टनर नहीं, उसका कोई साझा नहीं, न सल्तनत में, न कायनात के वजूद में, न कायनात के निजाम के चलाने में, और न कायनात के निजाम के फना करने में, कोई नहीं। अल्लाह की जात में दूसरा कोई शरीक नहीं, अल्लाह की सिफात में भी अल्लाह जैसा कोई नहीं। अल्लाह रोजी देने वाला, अल्लाह जिंदगी देने वाला, अल्लाह मौत देने वाला, अल्लाह नफा देने वाला, अल्लाह नुकसान देने वाला, अल्लाह इज्जत देने वाला, अल्लाह दलील करने वाला, अल्लाह शिफा देने वाला, अल्लाह बीमार पाड़ने वाला, अल्लाह औलाद देने वाला, अल्लाह औलाद की जिंदगी देने वाला, वगैरह जितने भी सिफात हैं ये सब अल्लाह ही में है। अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। इसको कहा जाता है शिर्क फी सिफात की नफी, शिर्क फिल इबादत। मक्का के मुशरिक लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे, जैसे आज के दुनिया के सनातनी, आज के दुनिया के आर्य समाज और इसके नेजा के तहर हजारों लाखों करोड़ों मुल्क हिंदुस्तान के हिंदू समाज से ताल्लुक रखने वाले सारे बिरादरान वतन, किसी एक का कोई एक भगवान नहीं, हर एक के अलग 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 माबूद। एरिया बदल जाएगा, माबूद बदल जाएगा, जुबान बदल जाएगी, माबूद बदल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह दिल से पढ़ना चाहिए। तमाम तर तारीफ उस अल्लाह ताला के लिए है जिस अल्लाह ने हमको दीन इस्लाम दिया, और अल्लाह ने उसको पसंदीदा दीन करार दिया, और अल्लाह ने अपने इबादत की दावत दी। और शिर्क फी ज़ात, शिर्क फी सिफात और शिर्क फिल इबादत, अल्लाह की जात में कोई शरीक नहीं, अल्लाह के इबादत में कोई शरीक नहीं, अल्लाह की सिफात में कोई शरीक नहीं, अल्लाह जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। ये तो सूरह इखलास का मैंने मुख्तसरन बहुत ही इजमाल के साथ तज़किरा आप हज़रात की खिदमत में कर दिया। ये सूरत रोजाना सुबह में घर से निकलने से पहले एक मर्तबा, और कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक एक मर्तबा, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास एक मर्तबा, इशा की नमाज के बाद या मगरिब के बाद ये 3 सूरतें एक एक मर्तबा रोजाना पढ़ दी। तमाम दुनियावी बलाओं से, आफतों से, मसाइब से, परेशानियों से ये 3 सूरतें इंसान को काफी हो जाएगी।
वो 11 आयतें हैं, ये 4 आयतें हैं। वो 11 आयतें दोनों सूरत की मिलाकर और ये 4 आयतें, यानी कितनी हुई? 12, 13, 14, 15 आयतें हैं। और 15 आयतों में 15 सेकंड 2 मिनट लगती है, और 2 मिनट कोई लंबा वक्त नहीं। क्या हो जाएगा? दुनियावी बलाओं से, आफतों से इंसान की हिफाजत हो जाएगी, और उखरवी बलाओं से कभी भी दिल में शिर्क का दाइया पैदा नहीं होगा। कभी भी दुनिया का कोई भी पूजा जाने वाला सोने का बना हुआ माबूद, चांदी का बना हुआ माबूद, पूरी दुनिया जिनको सलामी मारती हो, इसीलिए सूर्य नमस्कार नहीं होता है, चांद की पूजा नहीं की जाती है, दरख्तों की पूजा नहीं की जाती है, जल की पूजा नहीं की जाती है, नाग की पूजा नहीं की जाती है, और दुनिया में किसी भी बातिल माबूद की पूजा नहीं की जाती, इसलिए कि ये मखलूक है, इनमें का कोई खालिक नहीं, और जिसका वजूद एक अल्लाह के वजूद का मोहताज है। ये सूरह इखलास के अंदर अजीम तरीन मजमून बयान किया गया। एक खुलासा ये हुआ, लिहाजा इस सूरह शरीफा की तिलावत लाजिम कर लें। दूसरी चीज, जिन हजरात के पास वक्त मुख्तसर है, अपने मरहूमीन के लिए रोजाना कुछ भेज नहीं सकते हैं, तो कम अज कम बड़ी नापाकी में न हो, मर्द जनाबत में न हो, औरत से मिलने की वजह से गुस्ल वाजिब होता है या एहतलाम से गुस्ल वाजिब होता है, नापाक हो गया, ये तो कुरान पढ़ भी नहीं सकता। औरत को माहवारी आ गई मासिक, कुरान पढ़ नहीं सकती। हाँ, लेकिन सिखाने वाली आपा है, वो इस तरह सिखा सकती है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये आपा भी पूरा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ये हराम है पढ़ना, उसके लिए नहीं पढ़ सकती। हाँ, तकतीर के साथ पढ़ सकती है। अल्हम्दु ये जिक्र है, लिल्लाहि जिक्र है, रब्बिल जिक्र है, आलमीन जिक्र है, और वो तिलावत है, दोनों में फर्क है। तिलावत नहीं कर सकती, जिक्र कर सकती है। इसलिए मैंने पढ़ा सुभान अल्लाह अत्तहुर शत्रल ईमान, बाकी आधा ईमान, बाकी आधा ईमान। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तराजू के एक पलड़े को भर देते हैं, और तराजू का एक पलड़ा कितना बड़ा, जिससे हमारे अमल तोले जाएंगे। सात आसमान उठाकर मीजान, जिससे तराजू का पलड़ा वजन हमारे अमल का किया जाएगा, वो उसमें रख दिया जाए तो सब समा जाए। हमारे अमल के वजन करने के लिए अल्लाह महशर में एक तराजुआ कायम करेंगे। तराजुआ काटा छाबड़ा होगा, अमल तोले जाएंगे। वनज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, कुरान में इंसान के अमल तोले जाएंगे, अल्फाज तोले जाएंगे, आज़ा और जवारे से सादिर होने वाली हरकत तोली जाएगी, इशारे भी तोले जाएंगे। अल्लाह सबका मालिक है, तोलेगा वो, और उसको हक है, जिसने सब कुछ दिया तोलेगा। हमारे आमाल का वजन करने के लिए जो तराजुआ आएगा, इसका एक पलड़ा 7 आसमान और 7 जमीन लपेट कर उसमें डाल दें तो भी समा जावे, आमाल का वजन हो जाएगा। अब लोग कहें कि अमल करोड़ों खरबों अरबों इंसान गिनती से वधारे कैसे तोले जाएंगे? पहले गिने नहीं जाते थे, अब छोटे से मशीन के अंदर सब गिन लिए जाते हैं। यानी कितने इंसान, कितने जिन्नात, कितने जानवर, मर्दुम शुमारी हर एक की होती है। तो अल्लाह के यहां तोला जाएगा अमल, अल्लाह अमल की जिस्म देगा। हमने कहा सुभान अल्लाह, जन्नत के दरख्त का जिस्म अल्लाह उसको दे देगा। अभी हमने बोला सुभान अल्लाह, कसम अल्लाह ताला की, मेरे लिए जन्नत में एक दरख्त उग करके तैयार हो गए। आपने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, आपके लिए जन्नत में एक झाड़ लग गया। इसको न मानना कुफ्र है, अगर कोई इसका इनकार करे तो काफिर हो गए। हमारे नबी ने फरमाया सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये मीजान का तराजुआ भर देता है। एक सुभान अल्लाह, एक सुभान अल्लाह, वो मीजान का तराजुआ भर देगा। जो अभी मैंने कहा अत्तहुर शत्रल ईमान अल्हम्दुलिल्लाह तमलाउल मीजान, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह तमलाउ औ तमलान मा बैन अस्समाई वल अर्द। हमने जो ही पढ़ा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना पढ़ा,
आसमान और जमीन के दरमियान में जितनी खाली जगह है सब सवाब से भर दी गई, और आसमान और जमीन के दरमियान में खाली जगह हमारे नबी जी ने फरमाया 500 साल की मसाफत के बराबर बड़ी। ये एक मोमिन के सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह में ताकत है। इसीलिए मैंने ये रिवायत पढ़ी, तब लो तम लाने मां बैन समाए वलद वसला तो नूर, नमाज नूर है, सबका दलील है। कुरान तेरी फेवर में दलील करेगा या कुरान तेरे विरुद्ध के अंदर गवाह बनेगा। कुरान इंसान की जिंदगी कुरानी है तो कुरान फेवर का है, और अगर कुरानी अहकामात के विरुद्ध है तो कुरान उसके खिलाफ हुज्जत बनेगा। कुल्ल नौ से यगदू, हर इंसान की एक दौड़ है, कोई जन्नत की दौड़ लगा रहा है, कोई जहन्नम की दौड़ लगा रहा है। इम्मा बोबे कहा और बातें कहा, या तो ये दौड़ उसको अजाब के हलाकत के घड़े में डाल देगी, या तो ये दौड़ इसको जहन्नम की आग से आजाद करने वाली है। वरना दौड़ता हर एक है, हर इंसान किसी न किसी चीज की तलाश में है, हर इंसान किसी न किसी मकसद के तहत जिंदगी गुजारता है। अब वो मकसद या तो हलाकत का है या तो वो मकसद इंसान के लिए नजात का है। अल्लाह इस तौहीद पर एक जबरदस्त सूरत है जो मैंने पढ़ी, रात को सोते वक्त बावुजू सोए, रात में नींद आई, शहादत की मौत मरेगी। दिन में अक्सर हालात में वुजू रखे, शहादत की मौत आएगी। बावुजू कोई भी मरा, वुजू टूटने से पहले मौत आई, शहीद मरा। दूसरा फायदा चेहरे में नूर नसीब होगा। तीसरा फायदा औलाद में इज्जत नसीब होगी। चौथा फायदा बावुजू रहने से अल्लाह रोजी में बरकत पैदा करेगा। जितना हो सके बावुजू रहे। हमारे यहां एक सादात खानदान में बहुत बड़े नेक इंसान गुजरे हैं, जिन्होंने कहा जब से मैंने ये हदीस सुनी थी, उन्होंने अपनी वफात से पहले मुझे 1 महीने पहले कहा था, अपने बिस्तर पर चारपाई पर बिछाकर कहा मैं हजरत थानवी का मुरीद हूं और ये हजरत थानवी की किताबें मेरे पास है, और कबात में से निकाल निकाल करके किताबें मुझे दी और हदिया भी कर दी मुझे, और यूं फरमाया मुझे एक बात मेरी मौत से पहले मैं आपको बयान कर देना चाहता हूं, वो ये है कि मैं जिंदगी के अक्सर औकात, कुल के करीब औकात कभी भी बावुजू नहीं रहा, हमें कभी भी बेवुजू नहीं रहा, कभी भी बेवुजू नहीं रहा, हमेशा में बावुजू रहा। और मौत के वक्त खुदा ने अजीब किस्म का नूर अता किया था। सादात बिरादरी में थे, माजी करीब के अंदर इनका इंतकाल हुआ। नाम नामी इस्म गिरामी इनका सैयद हकीम अली अहमद था, जिनको बड़ा बापू कहते थे। तकरीबन जिंदगी के तमाम अदवार और हालात में उस आखिरी उम्र में जिसमें वो एक बीमारी के शिकार हो गए, और उस बीमारी में उनको बीमारी से ज्यादा जादू के असर ने सताया था, और इतना जादू का असर कर चुका था कि जिस्म पूरा अंदर से खून की तरह उभर रहा था, और बेचैनी बहुत सता रही थी। चूंकि खानदानी पीर थे और मेरा हफ्ते की एक मुलाकात उनकी मजलिस में तय थी, तो वो अजीब किस्म की नफासत और अजीब किस्म की नकाहत और तबीयत में खुश उस्तवारी और दुरुस्तगी के मालिक थे। मैंने आपको चूंकि मरहूम हो चुके, जिंदगी के अंदर जिंदा इंसानों में ऐसे हजारों है, लेकिन उनके सिफात जिंदगी में नहीं बयान किए जा सकते, हदीस में मना है। क्योंकि जिंदे आदमी की तरफ से मौत से पहले अपने किसी अमल की अच्छाई और बड़ाई दिल में पैदा हो जाए और आदमी में तकब्बुर पैदा हो जाए, तो बजाय जन्नत के वो अमल इंसान को जहन्नम में ले जाता है। इसलिए अल-हय्य ला यौमन अलैहि खौफुल फितना, जिंदे के ऊपर मौत की आखिरी सांस तक फितने का जो है बराबर खतरा रहता है। सूरह इखलास मौत से अपने शाम को सोते वक्त जब भी टाइम मिले 24 घंटे में, बड़ी नापाकी में न हो, मर्द जनाबत की हालत में न हो, एहतलाम की वजह से नापाक न हो, औरत हैज निफास की नापाकी में न हो, तो ये सूरत 3 मरतबा पढ़े, आगे पीछे 1-1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, आलम के मरहूमिन मुस्लिमीन की नीयत से इसाले सवाब करे। 3 मिनट में तमाम के तमाम इंसानों को एक कुरान कब्र में तकसीम होगा। आप कहते हैं एक को पहुंचेगी, सबको पहुंचेगी। अगर कोई आदमी ये दुआ पढ़े, रब्बना
ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। याद कर लो, 40 रब्बना में एक रब्बना ये रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। कसम खुदा ताला की, हमारे नबी जी ने फरमाया इस दुआ के पढ़ने के नतीजे में, इस एक रब्बना के पढ़ने के नतीजे में आदम का पहला बेटा हाबिल जो कत्ल हुआ था, इंतकाल फरमा गया। वहां से लेकर आज तक जितने भी मरहूमीन हैं, एक मर्तबा पढ़ने पर तमाम वर्ल्ड में जितने भी इंसान आज जिंदा हैं, हर एक के सर के बराबर एक एक नेकी उसके लिए लिखी गई, खाली एक दुआ पढ़ने पर। और करोड़ हाँ करोड़, खरब हाँ खरब इंसान की गिनती के बराबर, इन सब की गिनती के बराबर सवाब नामा अमल में मेरे लिखा गया। लिहाजा इसको भी पढ़े। दूसरा इसका फायदा ये होगा कि इसके बाबत, मुसलमानों के बाबत उसके दिल के अंदर गलत ख्यालात से अल्लाह हिफाजत करेंगे। ये वजीफा लाजिम कर लो, अपने अपने मरहूमिन के लिए, इसाले सवाब के लिए भी मौसिर। क्योंकि सूरह इखलास की तफसीर हो रही थी, इसलिए मैंने ये चंद बातें जिक्र कर दी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस सूरह शरीफा की मोहब्बत हम सबको जन्नत के अंदर जगह नसीब फरमाए। रविवार के दिन दोपहर 1 बजे मस्जिद अबू बकर के पास मामन भाई पटेल भसू की वाड़ी में जामिया तक़वियतुल ईमान लड़कियों के मदरसे का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें बच्चियां फाजिला हो रही है। सिर्फ औरतों में प्रोग्राम है। मस्तूरात को वहां जलसे के अंदर शिरकत की दावत दी जाती है। अपने घरों के मस्तूरात को वहां पहुंचाने की कोशिश करें। मदरसा है जहां से चंदे के सिलसिले में मौलाना तशरीफ लाए हैं। एक मस्जिद है राजस्थान में जो 47 में हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू हजरत जी अव्वल ने कायम की थी। बहुत पुरानी मस्जिद है मेवात के इलाके में। अब वो मस्जिद 47 की है, सन 47 की। अब वो मस्जिद खत्म हो रही है, 80 रेनो तामीर हो रही है, 1.5 करोड़ के आसपास का खर्च है। नमाज से फरागत के बाद इस मस्जिद के अंदर लिल्लाह ताउन जरूर फरमाते जाए। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वाखिर